He has been part of BAGIC since 2001. He has immensely contributed to the company by working across several functions serving various insurance profiles. Prior to Bajaj, he served as for Oriental Insurance for about 12 years, which is close to 3 decades of experience in insurance. Holds fellowship from Indian Institute of Insurance and is certified Black Belt OPEX. Can we have a big round of applause for him? Mr. Subhashis Majumdar. Welcome, sir. I now request Mr. Suraj Parihar, Chief Regional Manager, the Oriental Insurance Company Limited, to please join us on the panel. Mr. Parihar joined General Insurance in 1990 as assistant, but due to his hard work and positive attitude, he became Regional Manager in 2019 and took over the charge of Chief Regional Manager Office, Vadodara, of Oriental Insurance Company Limited. A big round of applause for Mr. Suraj Parihar. I now request Mr. Sandeep Rathi, Dealer Principal Sandeep Motors Bhilwara. He represents various brands including Ashok Leyland, Kia Motors, Ford Motors, Bajaj and many others. Can we have a big round of applause for Mr. Sandeep Rathi? He is the moderator for this panel, and I just request you to take this forward, sir. I want to discuss the different insurance aspects impacting the dealership. While we are aware of motor insurance, we would like you to share your knowledge as how, as a dealership, can be protected with different liabilities being experienced in the market. So first and foremost, my first question to you is, how do you choose your insurance partner as a dealership? What should be the parameters that our dealer partners should be looking at before they choose their insurance partner? Thank you, Sandeep. First of all, my heartfelt thanks to Vyapar Rajasthan and entire team for inviting me. It's a privilege to be here. Coming back to the question, you have basically asked two questions together. One is, how do a dealer principal selects an insurance company, or what all parameters to be seen? Now, question number two is, what are the liability exposures of dealers where they should seek protection? So let me respond to the first question, how to select an insurance company. As we all know, there are almost 30 plus insurance companies operating in India, and we may see more insurance companies coming in India. See, basically, couple of 2-3 points I would say that they should first look at insurance company. What they say is a piece of paper which actually has an assurance or a guarantee that in the event of any happening, that insurance company will stand by the customer or the dealer. So it is very important to understand the health of the insurance company, how strong, how financially strong the insurance company is. And the best way to check is in IRDAI you get the solvency ratio of the insurance company. So IRDAI says that the minimum 150% should be the solvency ratio of an insurance company, which means they should have capital 1.5x of the capital of their liability. So the first thing that should show which company is very solvent, and then that's point number one. Point number two, that what should they see is the claim settlement ratio. Because what dealership does for insurance companies, that they sell insurance to the customers, and in event of the claims getting delayed or rejected for whatsoever reason, they are the front runner who feels the brunt of the customers. They should also see the settlement ratio. These are the two most important things to me. Let me respond to the next questions. Yes, the liabilities that the dealerships are exposed to. I would say typically, a dealer, when a dealer principal takes insurance, they usually do not pay much attention to the insurance per se. Today, since morning we have been hearing about when Shashankji said about the digital inclination. Dealers should move digital. Then we heard Karthik, Mr. Amit Jain also speaking about how important is it to go digital. But this, and I'm sure everybody is inclined towards it.
So basically when you move towards digital, you actually are exposed heavily to cyber crime. Now, cyber crime meaning basically, there may be cyber attacks on your dealership, and usually I have not seen many dealers going for cyber crime insurance policy. See, if I can give you some example on how important this cyber crime insurance policy is from a real, use case. There was, one dealer, I mean, not a dealer, a company based out of Karnataka, a very big company. They used to import material from China, and the import size used to be around 25-30 crores. So once it happened that they paid around 5 crores of rupees as advance, and before delivery they have to pay the balance. He gets an email demanding for the balance and saying that your material is ready to be dispatched, please transfer this money to us. That company, the steel company, transfers balance 20 crores and was waiting for the material to come and all. After couple of days, he called up that company based out of China that transfer the money to you, but the material is not dispatched as of now. To his surprise, it is found that the money has not gone to him. Money actually has gone to an entity based out of London, and the next day the entire money was withdrawn from that account. So what has actually happened? The mail had come, it was a phishing mail, had come to him with a different account number, and there was one dot in the email ID which the person who transferred it doesn't know about it. So my point is that it's very important. So this kind of frauds are happening regularly. Dealers should go for, when the digitalization is good, you should have a protection by of a cyber crime policy. That's a liability. Thank you, sir. I think cyber policy is an interesting one. I don't think so we have it, and that's a very interesting point to be said. Pariyar sir, my question to you is, एक डीलरशिप में जितने डीलरशिप बैकएंड साइड से गाड़ी हमारे पास आती है, उसके तब कस्टमर को देते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है हमारा जो गाड़ी रिपेयर के लिए आती है हमारे वर्कशॉप में वो खड़ी है हमारे पास में, जो एक्सचेंज की गाड़ी है वो खड़ी है हमारे पास में, और जो कस्टमर्स के बाहर गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, उन सब को अगर हमें कवर करना है तो उसके लिए आप कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट करेंगे, एंड कैन यू थ्रो मोर लाइट ऑन इट कि हमें कैसे इसका आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू संदीप जी। डीलर्स, पहले तो सबसे पहले मैं आपका व्यापार राजस्थान का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस अवसर पर मुझे अपॉर्चुनिटी दी। संदीप जी ने बहुत ही राइट क्वेश्चन किया कि जो डीलर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनका बीमा कैसे होना चाहिए। जब व्हीकल जो है जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग के से डीलर पॉइंट तक पहुँचता है तो देयर इज टू पॉलिसी, वन इज द मेरिन पॉलिसी, उसमें तो जो व्हीकल्स हैं वो लोड होके आते हैं, अनदर जो खुद ड्राइव होके व्हीकल आते हैं जिनको ड्राइवर खुद ड्राइव करके वहाँ तक लेके आते हैं, उसके लिए हमारे पास मोटर ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से डीलर पॉइंट तक कितनी दूरी है, ट्रांजिट है, किलोमीटर के आधार पे हम इशू करते हैं। उसमें दोनों रिस्क कवर होती है, पैकेज पॉलिसी की तरह होती है, ऑन डैमेज सेक्शन भी कवर होता है और साथ साथ लाइबिलिटी सेक्शन भी उसमें कवर होता है। उसके साथ ही जो डीलर्स की मेन प्रॉपर्टी है इसलिए न्यू व्हीकल्स कुछ वर्कशॉप में होते हैं, कुछ स्टॉक जहाँ रखा है वहाँ होते हैं, बीच में ऐड कर दिया करो इसको जो ताकि पता पड़े स्टॉक का जो बीमा है वो में होना चाहिए। उसका हम बीमा करते हैं फायर इंश्योरेंस में, उसकी अलग से पॉलिसी है। उसके साथ ही जो प्रॉपर्टी है जो सारे वर्कशॉप शोरूम में हुआ, वर्कशॉप बिल्डिंग हुआ, बिल्डिंग इज द मेन प्रॉपर्टी, बिल्डिंग का बीमा होना चाहिए। उसी के साथ उसमें जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, फर्नीचर पिक्चर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, एसीज लगे हुए हैं, उन सब का भी इंश्योरेंस जो है एक मेन एस्पेक्ट है, उसका इंश्योरेंस जो है होना चाहिए। तो ये सब जो इंश्योरेंस है वो फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत हम एक डिफरेंट पॉलिसी में कवर करते हैं। इसी के साथ जो है पब्लिक लायबिलिटी एक
अनदर एस्पेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रीमाइसेस में आया है और उसको कोई इंजरी हो जाती है या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो उसका बीमा हम एक डिफरेंट पॉलिसी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका हम WC इंश्योरेंस करते हैं, उनका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस करते हैं। तो ये सारे जो कवरेज हैं, जैसा जिसने बताया कि कुछ व्हीकल्स गुड शेयरिंग ट्रस्ट में हमारे पास रखा हुआ है उसका भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मेन पॉलिसी है कितनी बार ऐसा होता है कि डीलर के यहाँ व्हीकल पड़ा है रिपेयरिंग के लिए और वहाँ से चोरी हो जाती है तो बहुत सारे डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं तो उसको नुकसान हो जाता है तो वो पॉलिसी कवर करती है। तो ऐसे भी हमारे पास जो है मोटर ट्रेड इंटरनल रिस्क है, उसमें मोटर ओडी सेक्शन में भी लॉस हो जाता है, वो भी हम कवर करते हैं। इवन जो है उस हमारे व्हीकल से दूसरे के व्हीकल को प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है वह भी कवर करते हैं। थर्ड पार्टी अनलिमिटेड लॉस को भी हम उस पॉलिसी के अंतर्गत कवर करते हैं। इसी प्रकार जो है जो डेमो व्हीकल्स के लिए जो है जो हमारी व्हीकल्स जो है जिनका सर्टिफिकेट के आधार पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ट्रेड सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं उसके आधार पे जब हम डेमो के लिए गाड़ी जाती है तब भी एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी लॉस के भी चांसेस होते हैं, उसको भी हम मोटर ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत कवर करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज जो हैं वो सारे डीलर्स के यहाँ डिफरेंट शेप में अवेलेबल है। कुछ डीलर कुछ पॉलिसी कराते हैं, कुछ डीलर कुछ पॉलिसी कराते हैं। आजकल पैकेज कंपोजिट पॉलिसी का चलन हो गया है कि डीलर को एक ही पॉलिसी के अंतर्गत सारी रिस्क कवर हो गया है। ये जो सारी रिस्क मैंने अभी आपके साथ डिस्क्राइब किया वो सारी पॉलिसी हम आजकल जो है एक स्पेशल कंटीजेंसी पॉलिसी या पैकेज पॉलिसी के नाम से करके सारी रिस्क जो आती है उसको हम कवर कर सकते हैं। उसमें प्लेट क्लास इंश्योरेंस पॉलिसी को भी हम कवर करते हैं। आपके जो साइनेज लगे हुए हैं या होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनको भी उस पॉलिसी में हम कवर कर सकते हैं। तो ये कंप्रेसिव पॉलिसी आपकी नीड को देखते हुए हम उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं और अच्छे से उसको हम आपको गाइड करके और मेन जो है मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में जो है काफ़ी लोग जो है ना क्या करते हैं कि जितना फाइनेंस किया है उसी के हिसाब से जो है ना आप पॉलिसी ले लेते हैं। ये बड़ा एस्पेक्ट है क्योंकि जो है पॉलिसी के अंतर्गत जब लॉस हो जाता है तब हमारी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तब हमें पता चलता है कि काफ़ी अंडर इंश्योरेंस है। उस समय डीलर पॉइंट पे आप लोग की हमने 2 करोड़ का फाइनेंस ले रखा है, स्टॉक 2 करोड़ का बीमा कर लीजिए, जबकि रियल सेंस में स्टॉक जो है 4 करोड़ या 5 करोड़ होता है। एंड डेट टाइम कोई इवेंट हो जाता है तो आप मान के चलिए 50% ही हम लोग कंपनसेट कर पाते हैं उस क्लोज के तहत। तो मैं इस टाइम पे आपको ये कहता हूँ कि प्रॉपर और परफेक्ट इंश्योरेंस लेना चाहिए और फुल सम इंश्योर लेना चाहिए, जिससे जो इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस है उसको वास्तव में हम उसको फुली इंडेमनिफाई कर पाए। If I may just summarize, see, insurance is a very important subject, but it gets least importance. I have seen, मतलब in dealership, डीलर प्रिंसिपल बहुत कम टाइम देते हैं इंश्योरेंस को चेक करने के लिए. So whatever point sir ne he has said about it, even if you see today, the insurance subject or discussion on insurance has come towards the fag end of it. But I can tell you, इंश्योरेंस की अहमियत तभी पता चलता है जब कोई बहुत बड़ा लॉस होता है. And if my appeal to all dealer principal is, please spend 2 hours in 1 year. जो बीमा तो हर साल रिन्यू करते हैं, 2 घंटा स्पेंड करिए, चेक करिए whether आपकी प्रॉपर्टी एडिक्वेटली स्टॉक कवर्ड है, कस्टमर्स की व्हीकल एडिक्वेटली कवर्ड है, आपने इंश्योरेंस एडिक्वेट सम इंश्योर लिए है कि नहीं, 5 करोड़ 10 करोड़ जितना लोन लिए उतना ही लेना चाहिए या ज़्यादा लेना चाहिए. आस्क 10 questions to the insurance guy before you finalize, and after finalizing please check the policy document जो आपकी इंटेंशन है वो कवर्ड हुआ नहीं हुआ. So insurance is least important, but it is the most important. I have seen many dealers winding up because of inadequate insurance or improper insurance. Thank you, sir. Thank you. That was very informative. I would like to also ask one thing. We all are, as dealer friends, grappling with some dishonesty with our employees, some mishap, some scam somewhere here and there. I would like to understand, we would like to understand
if you cover a policy which is more or less like fidelity kind of a thing. I would love to take this question. This is very close to my heart, and I would say I have seen this happening in dealership business. See, as you all know, dealership business is very porous. मतलब थोड़ी बहुत चोरी इधर उधर होता रहता है, and it is beyond your control. छोटी मोटी चोरी तो आप देख के नजरअंदाज भी कर सकते हैं. But if your accounting system, if your audit system, if your there are certain rules which you should follow to proactively get hold of कि कहीं पे चोरी हो रहा है नहीं हो रहा है. If it is not in there, then you are surely going to lose a very big amount. I'm recently seen a claim of 8 crores rupees, one single account person siphoned out from a dealership. Now this is a very pertinent subject for dealership business. There is an insurance policy. You should take commercial crime insurance policy. कमर्शियल क्राइम पॉलिसी में आपकी जो भी इस तरह की चोरियां होते हैं, मतलब पोरस बिजनेस होने के चलते, एवरीथिंग, आई मीन व्हाट डज द पॉलिसी कवर? एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी लीडिंग टू फाइनेंशियल लॉस टू द डीलर्स, एंड दिस कैन बी ह्यूज अमाउंट. तो आपके नाकों तले पैसा लेके चले जाएंगे. You will understand later. There are a couple of things that you should do in order to, like whistleblower policy, rotation policy. Lot of things a dealership should do, which a corporate world does, to proactively arrest the loss. So commercial crime or fidelity guarantee is the insurance that every dealer should take. Thank you, sir. This brings to me a question. We all have heard cyber policy, this other policy that we are talking about, commercial crime policy, then so many policies that we spoke about. Can we have a product which can be a comprehensive product, which can give all of this, because this is the requirement of almost every dealership. Can we design a product and it will be a great help to everybody here? In fact, what Surajji said is that only. There is a package policy which provides coverage against all these perils, I would say, in one policy. Now, I spoke about 2 more policies which is usually not a part of this policy. I said about cyber crime policy, which is a new threat to dealership business. Another is commercial crime policy. These 2 policies cannot be packaged there, but this can be and should be taken separately. There is another insurance policy from liability perspective. It doesn't cost much, but it gives you a lot of protection. It's a directors and officers legal liability policy. See, all the directors and officers in a dealership are actually exposed to huge liabilities. This can be gender bias cases against the dealer, because in most of the dealership we have seen a lot of female employees working also. There can be religion bias. कुछ नहीं, एक claim अगर आ जाता है, you have to defend yourself. The insurance policy provides you coverage for the defense cost, जो litigation cost होगा, that also gets covered. So another policy is there, which ideally can be taken separately other than the package policy. Thank you. प्रयास साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि यहाँ पे जो बैठे डीलर्स हैं, they have multiple showrooms, multiple locations. तो जब रिस्क अपने लिए कवर बनाना है, तो उनको क्या-क्या पैरामीटर्स में ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें देखते हुए चलना है ताकि हमारा अंडर इंश्योरेंस नहीं है. संदीप जी ने अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि एक डीलरशिप में काफ़ी लोकेशंस होती हैं, तो अलग अलग लोकेशन पे कितना सम इंश्योर रखा हुआ है एग्जैक्टली हम असर्टेन नहीं कर पाते हैं. एंड डेट टाइम जो कभी लॉस हो जाता है तो वहाँ ओवर स्टॉक भी हो सकता है, सम इंश्योर से ज़्यादा भी स्टॉक हो सकता है और कहीं कम भी हो सकता है. इसके लिए जो है हमारे पास टोटल पॉलिसीज होती हैं, ताकि उसमें सभी लोकेशन का टोटल सम इंश्योर जितना बनता है, वैल्यू जितनी है उस पर हम बीमा कर सकते हैं, ताकि जब कभी क्लेम हो जाए तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कम स्टॉक था या ज़्यादा था उससे फर्क नहीं पड़ता है. हम ये देखते हैं कि सारी लोकेशन पे टोटल सम इंश्योर कितना था, तो उससे एक प्रोग्रेस हो रहा है. जैसा कार्ड फ्लोटर डिक्लेरेशन पॉलिसी, इवन डिक्लेरेशन पॉलिसी भी हम दे सकते हैं, जिसमें हम मंथली डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और ऑन एन एवरेज आप मंथली जो हाईएस्ट वैल्यू होता है
और साल भर में एवरेज जो स्टॉक रहता है उसके आधार पे हम एक्चुअल प्रीमियम कैलकुलेट करके प्रोविजनल आधार पे जब पॉलिसी इशू करते हैं, एक्चुअल जो अगर सम एश्योर्ड कम होता है तो हम वापस प्रीमियम रिफंड भी करते हैं। If I may add what he said, आप लोगों की चिंता रहती है कि दिवाली के टाइम में मान के चलिए स्टॉक पोजीशन गोज टू 20 करोड़। जब आपकी दूसरी लीन सीजन में मई जून महीने में ये स्टॉक आ जाती है 5 करोड़ 7 करोड़ में, तो आपकी कितनी सबमिशन पे लेनी चाहिए पॉलिसी, ये आपके मन में क्वेश्चन आती है। अगर आप 20 करोड़ पे लेते हो जो साल भर नहीं रहने वाली है, यू पे मोर देन व्हाट यू एग्जैक्टली नीड कवर। अगर आप 5 करोड़ पे लेते हो और दिवाली के टाइम में स्टॉक बढ़ जाता है तो आपकी अगर लॉस होती है देन यू सफर अंडर इंश्योरेंस। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, जो सूरज जी ने बताया, आपको फ्लोटर पॉलिसी लेनी चाहिए, डिक्लेरेशन फ्लोटर डिक्लेरेशन पॉलिसी लेनी चाहिए स्टॉक के लिए। सो यू पे एज यू कंज्यूम, मतलब जितना आपने स्टॉक रखा है उतना ही पेमेंट किया, उससे ज़्यादा नहीं पेमेंट किया। Thank you. That's a very important point. Just in the last thing, what is your final piece of advice to all the dealers sitting here as to how we should look at, like you said, that we should give 2 hours in a year, something more important and something more informative that you would like to share with us? See, thanks you, Sandeep. I think, as I said, please give importance to insurance because ये आपकी जब डिस्ट्रेस में तभी काम आते हैं, गुड टाइम्स पे इंश्योरेंस वाले को काम नहीं आता है। I consider insurance as a very noble profession because we stand by the customer at the time of distress. So please spend 2 hours in 1 year to discuss with your insurance provider what is covered, what is not covered. Number 2, please select your insurance company basis their financial strength. प्राइस, इंश्योरेंस प्राइस जो आप सबसे पहले देखते हैं कौन कितना में दे रहा है, कौन सस्ता है। प्लीज डोंट गो फॉर चीपर ऑप्शंस। आई वुड सजेस्ट डोंट टेक इंश्योरेंस। अगर सस्ता ही लेना है, अगर आपको जब चाहिए व्हेन यू नीड हेल्प फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड वो अगर भाग जाते हैं, वो सामने नहीं है, तो क्या फायदा, वो इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए। प्राइस शुड नॉट बी अ कंसिडरेशन फॉर टेकिंग इंश्योरेंस। व्हाट यू शुड लुक एट इज मुझे ये चीज कवरेज चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी ये चीज कवरेज दे रही नहीं दे रही है, and selection of insurance company accordingly. And please look at the insurances I suggested. These are insignificant cost, but it can protect you big time in event of financial losses. And it is happening. ऐसा नहीं है लॉस नहीं हो रहा है। साइबर क्राइम की एवरेज क्लेम साइज इज $1 million that we see today. तो 70-80 लाख की एवरेज क्लेम साइज हो रही है। So you cannot afford to ignore these policies. इंश्योरेंस ही एक ऐसा है जो आपके दुख दर्द में खड़ा होगा। सो प्लीज इंश्योरेंस करते वक्त जो है, सुभाषिस ने बहुत अच्छा कहा है कि आप कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स कहा है। मैं सोचता हूँ कि 2 आवर्स से भी ज़्यादा 2 दिन लगना चाहिए। आपको डिटेल में डिस्कस करना चाहिए कौन सा पेरेंट्स कवर्ड है, कौन सा पेरेंट्स नहीं कवर्ड है। उसके साथ ही इंश्योरेंस में लॉट ऑफ कंडीशंस भी होती है कि कौन सी कंडीशन में क्या चीज़ होगा, क्या नहीं होगा। आपको इंश्योरेंस पीपल से ठीक से समझना चाहिए ताकि जब हमें कभी डिस्ट्रेस के समय एक्चुअली जब हमें लॉस हो जाए तो हमें किसी का तरफ देखना नहीं पड़े। इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, आगे आके आपका क्लेम सेटल करे, आपको भी दिक्कत नहीं हो, हमें भी दिक्कत नहीं। जब हम आपकी वास्तव में जब एक पीस ऑफ पेपर पे पॉलिसी दे देते हैं, तो जब लॉस हो जाता है तब हम आप सब सुनते होंगे कि 100 तरीके के नियम कानून कायदे बताते हैं, ठीक है, राइट। तो ये स्थिति नहीं है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन जो है परफेक्टली होना चाहिए। आप अपनी बात को इंश्योरेंस कंपनी को पूरी तरह से बताएं, इंश्योरेंस कंपनी से भी आप पूरी तरह से उस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को समझें, तब जाके इस इम्पोर्टेंस का जो इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो फ्रूटफुल होगा। क्योंकि हम इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि आपकी इतनी जो प्रॉपर्टी है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से सेफ रहे। कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेजर इवेंट हो जाए, तो हम आपकी मदद कर पाए। और उस समय जब हमें पता चले कि इंश्योरेंस ही कम है, ये पेरेंट्स कवर्ड नहीं है, इसका हमने प्रीमियम नहीं दिया, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो रियल सेंस में इंश्योरेंस तभी होगा जब आप जो है इंश्योरेंस
साथ समय लगा के डिस्कस करेंगे, पॉलिसी को समझेंगे, उसका रेटिंग का एस्पेक्ट देखेंगे। हो सकता है सुभाष जी ने कहा कि कोई महंगी पॉलिसी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, बट वो आपकी काफ़ी आपको उस समय मदद करेगा जब आपको रियल सेंस में जरूरत होगी। थैंक यू। Let's throw it to the house now. Thank you very much. I would request the distinguished panelists, अगर आप जो आपने कवरेज के बारे में कहा, अगर आप एक अच्छा सा एक नोट बना के हमसे शेयर कर सकें दो चीज़ों पे, एक तो क्या क्या हमें कवरेज होनी चाहिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में डीलर्स के लिए आ जाए, दूसरा जो आपने साइबर क्राइम या Commercial क्राइम पॉलिसीज के बारे में and directors and officers. करेक्ट, ये तीनों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो बताएं जो आज आई एम श्योर लॉट ऑफ किसी के पास नहीं, I can guarantee. हमारे खुद के पास नहीं, आई एम श्योर इट्स गुड लर्निंग फॉर अस। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा इफ यू कैन थ्रो सम लाइट इन अ नोट वी कैन सर्कुलेट थ्रू FADA टू ऑल आवर डीलर पार्टनर्स हियर एंड डीलर फ्रेंड्स हियर। और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि इन कंप्लायंसेस को कल ना खासा कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें क्लेम आपको लॉन्च करना हो, तो ऐसी क्या चीज़ें हमें संभाल के रखनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन हमारा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा, जैसे आपने कहा पेपर यूज़ पॉलिसीज़ हैं, तो हाउ डू वी अराइव टू दैट, हम कैसे उसको समझ सकें। तो एक अगर आपसे हम एक नोट ले लें और हम अपने डिस्टिंग्विश्ड डीलर्स को हम अगर शेयर कर सकते हैं, दैट विल बी a great advantage. Thank you, sir. Thank you. We will do that. Thank you so much, sir. And thank you all the panelists. I now request... One second, we have a yeah. question there. Yeah. My question on motor insurance, when we are doing business with a particular company, after some time they refuse and decline some models. So what we will do? जब हम हमारा सारा बिजनेस एक ही कंपनी को दे रहे हैं और उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर मॉडल के लिए डिक्लाइन कर देते हैं कि आपके प्रोडक्ट में हम इस मॉडल का इंश्योरेंस नहीं करेंगे, हम इस मॉडल का इंश्योरेंस नहीं करेंगे। तो वो ये कहते हैं क्लेम रेशियो बढ़ गया हमारा। तो क्लेम रेशियो को जब सारा बिजनेस दे रहे हैं तो ये हमें पता थोड़ी होता है कि किस मॉडल में क्लेम रेशियो बढ़ जाएगा, किस में नहीं बढ़ेगा। फिर अगर दूसरी कंपनी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब आपका बिजनेस उस कंपनी के साथ है तो ये पर्टिकुलर मॉडल हम क्यों करें, तो इसका क्या रेमेडी हो सकता है? सर, आज के तारीख में करीब 30 से ज़्यादा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं और उनमें प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सभी लोग जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइस को कटिंग करके और बीमा बेच देते हैं। जब क्लेम होता है तब जो है ये बोलते हैं कि ICR ज़्यादा हो गया। जैसा पर्टिकुलरली आप जो कह रहे हैं तो ये बहुत सी कंपनियों में होता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ICR ज़्यादा हो गया तो उसको डिक्लाइन कर देते हैं कि हम अब इसका बीमा नहीं करेंगे। तो आपको भी ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करते हैं कि शेयरिंग ऑफ रिस्क करते हैं। हम जो है लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको नुकसान होता है उसको देते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल। हम तो सिर्फ इसको मॉनिटर कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में ज़्यादा लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली हमें उसको वॉच करना पड़ेगा कि ये इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको कुछ उस पर टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा इम्पोज करें या उसका रेट जो है हायर करें या उसका जो वैल्यू है उसको कम करें। ये सारी चीज़ें हम करते हैं, किंतु आप लोग भी जो है ये प्राइस कंपटीशन से बाहर निकले और सही प्राइस पे सही बीमा करने के लिए कस्टमर को भी समझाइए ताकि ये स्थिति नहीं आए। थैंक यू। आई थिंक सुभाष Thank you so much, panel, for a very important session on the importance of insurance. I now request Mr. Shashank Poddar to please come forward and felicitate Shri Subhashish Majumdar ji, Business Head Motor, Bajaj, Managing Director, KB Automotives. Can we hear it for them? One more, sir. Thank you.